वीडियो क्लियर नहीं है। वेट सर वीडियो क्लियर है, बोर्ड दिख रहा है। यस सर आप देख बोर्ड एकदम ये चुप रहो। ओके अपना माइक so speech writing we are going to take up रुको सर आपका कैमरा लैंडस्केप में पोर्ट्रेट कर जरा रुको एडजस्ट कर रहा हूँ लेफ्ट रुको साइड कीजिए ना थोड़ा। सर ठीक है, वेट तुमको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ड्रामा कर रहा है सर। या सर सही है सर, ड्रामा कर कुछ मत करिए सर, जूम मत करिए सर। सर स्पीच राइटिंग सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट speech writing you know we need to write a speech. We need to from time to time we need to write a speech, भाषण लिखना, ठीक है। we need to write a speech from time to time and speech writing that is made especially at school in school prayer assembly. Okay, this is a topic, children, try to understand. This is a topic which is cast at prayer assembly in a school. Okay, one problem is there. The topic describes a problem or an issue, and one student is supposed to write the speech on the given topic and then cast it at school prayer assembly that is held in the morning, you know. Yes, so that is speech writing. भाषण देना एक कला है। हमारे नेता लोग भाषण ही तो देते हैं, जानते हो ना। yes so this is a topic also under our writing section, writing skills. Okay, so let us start with its format. ओके सर। Yes, formal letter we have done, children. Formal letter, informal letter, message we have done, notice done, postcard writing done, and this is the last one. Okay, come on. So format, this is our page. See, this is our page that we write on. स्पीच राइटिंग में बॉक्स में लिखा है। No dear, no box. This is our page. बॉक्स रहता तो मैं बॉक्स की बात 10 बार बोल चुका होता आपको। Is it clear? Yes, sir. Okay. First of all, title. Okay, title. Our next step is good morning. सब बोर्ड विजिबल नहीं है। सर बिल्कुल सही है, पास कर रहा है। सही है। Skip one line. Okay.
begin Sir, the clear next है। head to take down the next next head or step. Maintain a space of one line. Number 3, address. It is address. Respected principal, teachers, सर एक मिनट गैप करके yes, and my dear friends. Yeah, this is the third step. This is the third step, okay? Yeah. Yeah. Exclamation mark. And now, I write your name, class 7, section whatever it is. Mention section, mention your section whatever it is. 7, 8. 7A, 7B, 7C, whatever section you belong to, mention it. Well, so this is for your name. टीचर्स एंड This is left for your name, children, boys and girls. Comma, punctuation marks, maintain, use proper punctuation marks where they are needed. Don't ignore them. Don't neglect them. Punctuation marks. Mind it. And 7 के बाद स्लैश होगा। going to 7 के बाद क्या लिखे हैं? yeah, slash. Going to cast or speech. सर क्लास के बाद क्या है? 7 के बाद क्या लिखे हैं? Cast or speech as on the Seven के बाद सर क्लास के बाद क्या लिखा है? 7 के बाद कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है। 7 के बाद एक तरफ एक लाइन छोड़ना है क्या? टॉपिक के लिए नहीं जगह भाई। छोड़ो। गिवन टॉपिक सर सेंटेंस में से स्पेस देखिए इसको ना उसी में आई वाला ये तो ये पूरा एक साथ लिखो। एक ब्लॉक में दिस इज वन ब्लॉक चिल्ड्रन। या वन ब्लॉक। या दिस इज वन ब्लॉक, वन पार्ट, वन सेगमेंट। सर क्लास के बाद 7 के बाद कुछ क्या लिखा है? हाँ, कॉमा कॉमा है सर। एक्सक्यूज मी सर यस व्हाट कैमरा को सीधा कर लीजिए। टेढ़ा दिख रहा कैमरा। क्या टेढ़ा दिख रहा है? सर बकवास कर रहा है क्लास में डिस्टर्ब। ओके नो ठीक सर है। ठीक है। सर कर रहा है सर। नो सर ठीक है। टॉपिक चुप रहो ना। well over mention the top. This space is to mention the topic, that's all. And now follows the real speech, and the real speech is that is the content, and the content is children divided into 3 segments. अब स्पीच शुरू होगा। ये तो हम लोग एक्सरसाइज वार्म अप कर रहे हैं, ठीक है? यस, ध्यान से चलो। या स्पेस को कंटेंट वन तीनों कंटेंट के लिए लाइन छोड़ना। हाँ, सब में छोड़ना। ये ड्राफ्टिंग है बेटे, ये ड्राफ्टिंग है। CBSE का ड्राफ्टिंग है।
वो लिंग्विस्टिकली कंट्रोल्ड राइटिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। जगह दिया रहेगा, वर्ड लिमिट दिया रहेगा, इतने ही में लिख लिया ये रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसी में कबड्डी भी खेलोगे, कबड्डी नहीं खेलना है आपको एकदम बिल्कुल डिसिप्लिन, अपनी लैंग्वेज को डिसिप्लिन करनी है, रेस्ट्रिक्ट करना है। आपको पूरा आकाश नहीं दे दिया जाएगा लिखने के लिए, उसी में दौड़ते रहिए। ओके, लिंग्विस्टिकली कंट्रोल्ड राइटिंग यानी स्पेस दिया रहेगा, वर्ड लिमिट दिया रहेगा, उसी में लिखना है। बाहर जाओगे मार्क्स कट जाएगा। If you are crossing the word limit, children, you say word limit. Mind it. If you are crossing the word limit, you are going to lose marks. Okay. सुनाई नहीं दे रहा तो कंटेंट वन क्या होगा? इंट्रोडक्टरी लाइन्स। ये इंट्रोडक्टरी लाइन्स होगा कंटेंट वन। सही है सर। तो मैं क्या करूं? नहीं क्लियर है तो कुछ नहीं। चलो कंटेंट वन इंट्रोडक्टरी लाइन्स। ठीक है, मिटाऊंगा, ऊपर को रब करूंगा, नीचे जगह स्पेस नहीं है बेटे, नीचे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर ले जाऊंगा। हाँ ध्यान, थोड़ा सा बच गया नीचे जल्दी। हाँ हाँ, स्पेस नहीं है बेटा। कंटेंट वन दैट इज लिमिट नहीं। कंटेंट वन इंट्रोडक्टरी लाइन्स। कितना ओके, आगे बढ़ो। रब कर दूं ना? रब कर दीजिए सर। यस, कर दीजिए। ये one now two। second part of the content, second segment of the content, that is body। छोड़ना है, space छोड़ना है। हाँ, लाइन छोड़ना है सर। इसको एक्सपोजिशन भी कहते हैं। पढ़ने आना है लेकिन मालूम नहीं। हाँ, इसको एक्सपोजिशन कहते हैं। सेकंड पार्ट को बॉडी या एक्सपोजिशन। बात मत करो, शांत से पढ़ो। बोलना SI एक्सपोजिशन। सर क्या लिखे सर? बॉडी के बाद एक्सपोज है सर। एक्सपोजिशन। This is the biggest part of your speech writing. This is the largest segment। और इसी में आपका जो टॉपिक है, इसी में आपको फुल्ली डिस्क्राइब करना पड़ता है। आपको प्रॉब्लम हो, उसके कॉजेज हो, उसके इम्पैक्ट हो, इफ़ेक्ट्स हो, फिर उसका सॉल्यूशन हो, रिमेडियल हो, सब इसी में लिखते हैं। This is why this is the biggest part, biggest section of your speech. Okay, see, this is in this side. Okay, sir. Okay.
हाँ आपका बोर्ड नहीं दिख रहा है। ये सबसे बड़ा सेगमेंट है। हाँ ब्लर आ गया। साइड हो जाइए ना। चलो ये जल्दी करो, ज़्यादा सवाल नहीं करो बेटे, काम करो। पूछ रहा सर स्केच खत्म किया था दूसरा भी सर लग रहा है उसको पेज का कमी हो गया है सर। अब पेज को बढ़ाते हैं। And third part is what? Third part is what here? Conclusion. Conclude कर दो. That is end the speech with your personal. क्या लिखे सर? वीडियो थर्ड कंक्लूजन लिखे समझ आ रहा है ना? क्लोजर भी हो जाएगा वो। With your personal view, with your personal view, with your personal opinion. सर म्यूट कर दीजिए। हाँ करना पड़ेगा, मैं वही म्यूट ही करूँगा। म्यूट कर देता हूँ सबको, तुम लोग बहुत सारे सवाल कर दे रहे हो। थैंक यू सर। सर म्यूट मत कीजिए। म्यूट कर दूँ ना? नो सर, अच्छा ठीक है, हाँ, तो बस सवाल ज़्यादा नहीं करो, काम करो, ठीक है। और लास्ट होता है थैंक यू, यस, वेलकम। and it ends with thank you, okay? लास्ट में थैंक यू। होगा। थैंक यू। Yes. कंक्लूजन का मतलब उसमें लाइन छोड़े डैश डैश। सर कंक्लूजन का मतलब क्या है सर? सर टेस्ट का मतलब क्या है? समझ नहीं आ रहा है। सुना होगा। एक सैंपल स्पीच राइटिंग को टेकअप करते हैं। कम ऑन बी क्विक। अरे 3 घंटे मिला होगा सर, वही सर 3 कंटेंट मिला के तो वहाँ पर स्पीच नहीं कंक्लूजन का मतलब सर कैमरा सर ऊपर करिए सर। अब चलो रेडी हो जाओ, क्वेश्चन लिखो। अब हम लोग एक स्पीच लिखते हैं, भाषण देंगे अपने स्कूल के प्रेयर। कंक्लूजन का मतलब कंक्लूजन का मतलब वो निष्कर्ष, कंक्लूजन निष्कर्ष को कहते हैं। अंत में तुम क्या सोचते हो? अंत में इस मुद्दे पर, इस समस्या पर, इस टॉपिक पर तुम्हारा क्या राय है? तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारा क्या विचार है? दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। दैट इज द एंड। दैट इज द एंड। थैंक यू सर। सर कैमरा ऊपर कर दीजिए सर। डैश डैश दिए, उसमें लिखना है अपना लैंग्वेज में। अरे कंटेंट को मिलाकर बनता है तो उसका डैश डैश लिखा हुआ सर। स्पीच लिखवाएंगे। ऊपर कर दीजिए थोड़ा। समझ में नहीं आ रहा है। अरे स्पीच को 3 कंटेंट मिलके बनता है ना सर। अभी बताया तो देख लेना डैश की जगह सभी शब्द लिखेंगे। पर नहीं हो रहा है सर, ऊपर का बोर्ड पर नहीं हो रहा है। देखो टॉपिक देखो। राइट ए स्पीच ऑन ग्लोबल वार्मिंग। राइट ए स्पीच ऑन सर दिख रहा है। ग्लोबल वार्मिंग। इसको नोट करना है। क्वेश्चन है ये, सैंपल है।
ग्लोबल वार्मिंग। सर दिख रहा है ग्लोबल वार्मिंग। वो सर हाँ। सर इट इज क्लियरली सर साइंस में जो पढ़े थे लिखो। to be cast at ए अपना अपना माउस माइक में क्लिक करो ना। at morning assembly। तो तुमको मॉर्निंग असेंबली में स्पीच देना है, मॉर्निंग असेंबली पर स्पीच देना है ग्लोबल वार्मिंग पर 100+ वर्ड्स में, 100+ वर्ड्स, 100+ वर्ड्स, 100+ वर्ड्स। लूट वर्ड। हाँ बोलो। 100 नहीं है सर वो लूट है। 100+ वर्ड्स लिखे हैं तो लूट दिखा रहा है। देखने में लग रहा है लुटेरा। लुटेरा वर्ड। कोई टेंशन नहीं। अंकित लगे वैसा ही दिख रहा है यहाँ पे। हाँ हो गया, मिटाऊं, क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। 100+ लिखा है। सब आवाज क्या रहा है, बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है। तुम लोग 2 मिनट भी चुप नहीं रह सकते, सर चिल्ला रहे हो, आवाज ही नहीं आ रहा। अरे तुम अनम्यूट हो जा, तुम म्यूट हो जाना, तुम म्यूट हो अरे जा। भाई तुम लोग क्यों चिल्ला रहे इतना भाई, शांत रहो ना, सही तो बोल रहा है। सर सबको म्यूट कर दीजिए, ये लोग बकर बकर करते रहेगा। बकर बकर कौन भाषा है? खुद तो कैसी हो बकल बकल। यस अभी नहीं है, इंसान है इंसान। ना मतलब नाना करना पड़ेगा। सर सबको म्यूट कीजिए, सब बहुत सर सबको म्यूट कर दीजिए, सर बहुत चिल्ला रहा है सर। हम खुद ये सर सर सब गॉड सर बकरी और भैंस की respected principal, teachers and my dear friends, I dash 7 comma I comma space सर for गुड your मॉर्निंग name के बाद एक लाइन छोड़ना है class section comma and going to cast मतलब एक लाइन छोड़ना ही होगा। सर डैश में क्या लिखा है? डैश में क्या लिखा लाइट क्लिक करो। है सर, किसका नाम लिखना है? global अब तो अपना लिखेगा। बकरी का warming सर आगे का टाइम नहीं लगेगा। और के बाद नहीं ना लगा, यहाँ देखो सर वहाँ पूछ रहे हैं। ना वहाँ नहीं, वहाँ से दूर हट गया ना। मैं प्ला 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 अब देने जा रहा हूँ, तो उससे क्योंकि आपके पहले कुछ आ गया, तो जो आ गया ना तो उसको मेंशन करना है, तो एम जाएगा उधर बाद में। वहाँ लिखेंगे आई एम सुमित कुमार। नहीं आई एम गधा। अपना नाम लिखे है नहीं। ना बोलते हो तुम लोग, चुप रहो ना। As we know, सर एक लाइन छोड़ के ना। yes, global warming सर
is a weather phenomenon. Sir, Weather please side. phenomenon. Side. Weather phenomenon that leads to gradual rise ग्रेजुअल क्लियर लिखो जल्दी कमान नहीं तो अधूरा रह जाएगा ग्रेजुअल के बाद क्या लिखा है? क्या लिखने दीजिए तब इरेज करिएगा। सर ग्रेजुअल के बाद क्या लिखा है? अरे ग्रेजुअल राइज है बेटा राइज सर में एक लाइन छोड़ना है सर इरेज। लाइन छोड़ेगा ज्यादा। सर नीचे वाला छोड़ दीजिएगा सर। सर फिर से दिखाइए ना। सर 7 के बाद ए लिखा है ना। पुराना सर डैश 7 के बाद ए लिखा है। सर 7 के बाद ए लिखा है ना। सर मैं लिख नहीं पा रही हूँ सब बहुत। अरे 7 के बाद ए नहीं लिखा है तो क्या बोल के लिखना है। No, this is introduction. Content one. Yes. हो गए। सर गुड मॉर्निंग के बाद लाइन होता है। अभी कौन गुड मॉर्निंग In other words, सर अक्रॉस द ग्लोबल के बाद सर क्या लिखते हैं? दिख नहीं रहा। ग्लोब लिखा है। वर्ड्स लिखा हुआ है। over the years, सर लोग बहुत अलग कर रहे हैं सर। Another words. over the years, The words over the years. the सर ये आप भेज दीजिएगा ग्रुप पर। सबको को भेज दीजिएगा। atmospheric कुछ से मेल temperature अभी लिखना नहीं है। लिखना नहीं है। सर भेज नहीं है। has been वर्ड क्लियर नहीं है तो कैसे लिखे? rising, वर्ड क्लियर है। वर्ड क्लियर है। rising bit by bit, bit by bit. This is introductory part. Introductory line. Come on, सर हाँ हो गया। बोलो सर हो गया सर। हाँ ये देखो ये 1 हो गया कंटेंट का पार्ट 1 कंटेंट 1 दैट इज इंट्रोडक्टरी लाइन्स वही तो बोला ना। हाँ डिवाइड हाँ यस दिलवाए उसमें लिखना है। अरे सर कंप्लीटेड सर कंप्लीटेड। सर